अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम में। आज हमारा प्रोग्राम और आज की सेलिब्रिटीज़ और आज का माशाल्लाह जहां पर हम मौजूद हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये लोग माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया है, और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है कि इनके पहले वाले स्पा पे भी मैं गया था, शूट नहीं कर सके हम, बट आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने अपने स्पा को शिफ्ट भी किया है, एक्सटेंड भी किया है और प्लस एक्सपेंशन भी की है। When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain when the night has come and the land is dark and
the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमन, आप जी, ठीक हैं? अल्लाह का तबीयत शुक्र है। कैसी है? जी, I'm good। आप बताएं। माश अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये बी के स्लोन जी, बी के स्लोन को अगर हम एब्रिवेट करें तो क्या बनता है? मैम ये हमारी मैम है बीना की, जी, बीना जी। खालिद, तो जी, ये जी। उनके नाम से हमने किया है। ओके, तो बीना बीना खालिद खालिद सैलून, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इजी कर दिया, बीके कर दिया। बीके कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो गुड। अच्छा, माशाल्लाह कि जिस तरह से जितना खूबसूरत आप लोगों ने सलोन बनाया है, जी सर। जो पीछे पहले वाला था आपका वो भी पीछे एक गली पीछे था जी, और वो भी मेरा मैंने देखा था, वो भी माशाल्लाह अच्छा बना हुआ था, लेकिन उससे कहीं ऊपर आई थिंक 100% मोर बेटर किया है आपने, बिल्कुल। जगह के लिहाज से और अपनी मशीनरी के लिहाज से, बाकी सीटिंग के लिहाज से, Actually, कस्टमर्स के लिहाज जी से जी, हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है ना वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो एक रहे हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी की है आपने। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स, जी। हमारी अगर सारी सर्विसेज अच्छी होंगी, हम्म। हम उनको एक एम्बियंस दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है कि अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली आएंगे क्लाइंट्स, तो वैसे ही हमसे लेकिन यहाँ पर satisfied एक और जो चीज देखिए कि आपके बिल्कुल सामने भी एक सैलून है, हैं। जी जी, तो कंपटीशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए वी आर नॉट अ कॉम्पिटिटर, हम अपना ही कॉम्पिटिटर है, That's आप good. नहीं से करेंगे। Good. लेकिन ये कि हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो सर्विसेज हैं वो अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स हमारे अच्छे हैं, सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बॉटल के अंदर ऊपर कुछ और अंदर कुछ और बिल्कुल भी नहीं, आप जो है ना वो बार कोड स्कैन भी कर सकते हैं, हमारा जो है वो बार सारी कोड तो बाहर ही होता है ना, अंदर तो होता नहीं है ना नहीं, वो लिक्विड भी देखिए, हम जो है ना कोई स्टॉक ऐसा नहीं करते कि हम जो है ना वो बाजारों से ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, ये सारे जो है ना हम लोग इम्पोर्टेड ही होते हैं, तभी हम में। मैं यहाँ पर ये बताता चलो, एमएन की बात को बीच में पॉज कर रहा हूँ कि जिस तरह से अगर मिसाल के तौर पर ये अगर प्रोडक्ट में कोई भी 2 नंबर प्रोडक्ट यूज करेंगे या कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली वो कस्टमर लूज करेंगे, और वो कस्टमर सिर्फ नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो सिर्फ उसी टाइम का कस्टमर होगा। अगर कस्टमर रिपीट आ रहा है और कस्टमर न्यू कस्टमर भी प्लस आ रहा है, और कस्टमर की जो जिस तरह से माशाल्लाह इनपुट बढ़ रही है, जिस तरह से कस्टमर ह्यूज इनके क्लाइंट्स लेवल और क्लाइंट्स की काउंटिंग बढ़ रही है, इसका मतलब यही है कि इनकी सर्विसेज, इनकी प्रोडक्ट्स और प्लस सिटिंग कैपेसिटी को भी इनको बढ़ाना पड़ा है। तो वो वक्त की नीड ही नहीं है, वो कस्टमर की नीड भी है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है। ऐसे ही है एग्जैक्टली, क्लाइंट्स आर फर्स्ट, हम पहले क्लाइंट्स की जो है ना वो डिमांड देखते हैं,
वो क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या रेशियो है, Exactly. क्या रेशियो है तकरीबन, क्या परसेंट, अगर हम परसेंटेज में काउंट करें कि देखिए, एक mostly- होता है कि जी 10%, 20%, 40%, 90%, 100% तक तो कोई भी नहीं होता, आपका रेशियो कहाँ तक है? कस्टमर क्लाइंट से देखिए ऐसे सेटिस्फेक्शन की होता बात है कर रहा हूँ मैं मैम, सेटिस्फेक्शन कराना तो हमारा काम है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनको फीडबैक तो आता है ना। कहीं से भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो हम उनको 100% अपना देने की एफर्ट देते हैं कि नहीं, अगर उनको कोई सर्विस नहीं पसंद आई तो हम उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो नहीं हो- कम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ हाँ, प्रोवाइड करते हैं। बस लाइक ये एज सब क्या बात satisfied। अगर हम कोलाची पे जाके बैठे हैं, ठीक है, और डिनर कर रहे हैं और हमने कहा कि यार आपकी कढ़ाई के अंदर या आपकी हांडी के अंदर या आपके फूड के अंदर ये थोड़ा सा स्पाइस ज्यादा था या ऐसा कुछ था, तो आप फिर हमें मतलब कुछ वो करने के लिए बना के कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, हमें स्वीट बिल्कुल। डिश वगैरह कुछ ना कुछ बिल्कुल आइटम कर सर्व देते करते हैं। हैं, तो सर्विंग फिर करते आप हैं। लोग क्या केक प्रोवाइड करते हैं, चाहे नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट्री उनको कर दूसरी देते हैं, सर्विसेज दे कोल्ड देते ड्रिंक, हैं, अच्छा हम उनको सर्विसेज कुछ देते हैं। दूसरी सर्विसेज दे देते हैं। चाय और ये कोल्ड ड्रिंक तो हमारे लिए नॉर्मल है, हम तो उनको सर्व करते ही हैं जो अच्छा हमारे अच्छा होते हैं। अच्छा, जो जिस एरिया के अंदर बैठे हैं, मेरे ख्याल में तो अगर कोई दूसरे सैलून में कोई बैठा यही हुआ तो हो बात तो है वो बोलेगा कि कि जी मैंने चाय पीनी है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है जी हम पठान के होटल से चाय मंगवा रहे हैं, हम और इसको उसके बाद उसको बोलेंगे चाय के पैसे इसको दे देना। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम उनको अच्छा। सर्विस देते हैं, हमको ये सारी चीजें देते हैं, अच्छा। लेकिन उनसे हम जो है ना वो कोई कॉस्टिंग नहीं लेते हैं ये अच्छा, सारी कुछ चीजें। चार्ज नहीं कर रहे। यही एक मेन रीजन है कि इस इलाके में या इन एरियाज में ऐसे सैलून नहीं है जो Good हम that. सर्विस भी दे Good रहे हैं, that. हम उनको जो Good है ना that. वो फीडबैक हमारा अच्छा ही आता है इसी वजह से गुड दैट कि माशाल्लाह। डीएचए क्लिफ्टन से ही आप जो है ना उनको करेंगे कंपैरिजन हम बिल्कुल। इस तरह से करते हैं। हाँ, कि लेकिन उनको क्यों आके डीएचए क्लिफ्टन को हमने क्यों आखिर टारगेट कर लिया, क्यों हमने एक लेवल डीएचए क्लिफ्टन का चूज कर लिया? हमारे पास तो बराबर में तारिक रोड है, उस पे सारा लाइन से भरे हुए और एक से एक टॉप लाइन के सैलून मौजूद हैं, बिल्कुल सर, बराबर में है आपके, कोई दूर नहीं है, वहाँ पे वॉकिंग आप डिस्टेंस सबका पे। सर्विस व्हाई वी देखेंगे, शुड, आप नॉर्मल पे अगर आप जाएंगे ना वहाँ पे आपको गंदगी नजर आएगी। कहाँ पे? तारिक रोड के आप कुछ सैलून्स ऐसे हैं, मैं वो वाली बड़े बात से बड़े सैलून पे भी, आप देख सकते हैं, मैं वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर तो बड़ी सफाई नजर आई है। बिल्कुल। या आप लोग को पता था कि हम लोग आ रहे हैं तो इसलिए पूरा नीट आप क्लीन कर अचानक दिया? से कभी आ जाइएगा, आप अच्छा, देख अचानक लीजिएगा। सरप्राइज विजिट भी हाँ, कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले, गुड दैट, थैंक यू हाँ, सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना खालिद से कोई मुलाकात हो सके आज हमारी? बिल्कुल आप मैं बुला देती हूँ उन्हें, जी वो जी है प्लीज यहाँ पे जी। हमारे साथ। अच्छा है माशाल्लाह, जी जी जी, मैं दैट्स उनको गुड, बुलाती ग्रेट हूँ। गुड ग्रेट। ओके, चले, अगर ये अच्छा अगर हो जाती है मुलाकात ठीक है। जी माशाल्लाह, ये जो हमारे सामने अस्सलाम मौजूद वालेकुम। हैं बिना खालिद, कैसे वालेकुम सफर वाले, आप सलाम। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मेरी बहन, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा आपने जज़ाकल्लाह। आकर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपका न्यूज Thank you सैलून so देख much। के, और पूरा जिस तरह से आपने मेहनत की है, लगता है कि दिल से मेहनत की है, और ये बिल्कुल। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको जो स्टाफ मिला है वो सब माशाल्लाह बहुत जी, अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा स्टाफ है। चाहे वो हम स्टार्ट लें, आपका नाम था एमन, जी जी। एमन से स्टार्ट लें, या फिर हम इस तरह से एमन से चलते 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 आगे तक चले जाएं, वो ईशा तक चले जाएं, या ईशा से चलते चलते और उसे आगे तक चले जाएं, जी, जी, तो thank you माशाल्लाह so सारा much। स्टाफ आपका, देयर इज नो डाउट, स्टाफ अच्छा सारे होगा तो बच्चे सैलून अच्छा चलेगा, रन करने वाला क्योंकि स्टाफ ये ही एक होता टीम है। वर्क होता है। जी, ये एक टीम वर्क, बिल्कुल। देखिए वन मैन कभी भी जो है ना वो नहीं होता कि एक बंदा जो है पूरा मैच जीत ले, एक सही। टीम की पूरी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। होती है, तभी तो एक बिजनेस भी ग्रो करता है या मैच भी विन होता है। इसमें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या आज लकीली यहाँ पे मौजूद थी या स्पेशली आपको बुलाया गया था कि हमने आना था, जी, या नहीं, आपकी नहीं। रूटीन टाइमिंग कोई मेरी टाइम रूटीन टेबल? टाइमिंग है, मैं रेगुलरली 3 से स्टार्ट लेती हूँ, 3 PM से लेके ठीक है। 9 PM तक मैं होती हूँ। अच्छा, 6 घंटे आप डेली के आप यहाँ स्पेंड जी। करती हैं, माशाल्लाह, गुड। आई थिंक व्यूअर्स, ये चीज आप अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर बिजनेस ओनर किसी भी छोटे बड़े मीडियम लेवल के बिजनेस के अंदर अगर खुद मौजूद नहीं है तो वो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाता उस लेवल पे जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो अचीव नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है बिना खालिद से, इस लिहाज से कि वो खुद अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, और जिस तरह से 6 घंटे अपने वो यहाँ स्पेंड कर रही हैं, तो इस मतलब वो 6 घंटे की आउटपुट परफॉर्मेंस, वर्किंग, और प्लस अपने कस्टमर्स को देखना, और सफाई सुथराई, ओवरऑल एवरीथिंग, मशीनरी, हर चीज को वो देख रही है, कहाँ पर किस चीज की नीड है, कोई कमी बेची तो नहीं है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाइजीन का हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल, कि हर थोड़ी देर में हम यहाँ पर जो है ना वो सफाई वगैरह दैट्स गुड, करवाते ग्रेट, रहते हैं। माशाल्लाह। नहीं, ये एक्सपीरियंस तो हमें हुए हैं, मैंने फीडबैक्स यहाँ पर आपका इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने से पहले 3-4 जो कस्टमर्स हमारे रेफरेंस से आए थे या हमने भेजे जी। थे, उसमें ब्राइडल्स के थे, दूसरे थे, जी। उनसे हमने फीडबैक लिया था और आपका फीडबैक अच्छा आया था। देन वी थॉट दैट नहीं, अब नीड है कि एक विजिट कंडक्ट किया जाए, एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, आपके स्टाफ से मिला जाए, आपका पूरा ओवरऑल देखा जाए कि कैसा है कैसा नहीं।
तो माशाल्लाह जिस तरह से आपने एक अच्छा खासा एक ह्यूज एक्सपेंशन कर दी है जी और ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको अपने बिजनेस के हवाले से इसमें, कि जिस तरह से आपने माशाल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर आपने स्टार्ट लिया है? हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की थैंक दे। यू सो मच। You are एक्चुअली पहले मैंने 2 रूम्स पे था, तो माशाल्लाह जी। क्लाइंट इतने थे कि मुझे सिटिंग एरिया मेरा छोटा पड़ रहा था ना। बिल्कुल तो ठीक है। फिर मेरे क्लाइंट्स ने कहा कि आपका जब काम इतना अच्छा, वर्क आपका बहुत अच्छा है, तो आप इसको थोड़ा और अच्छे पैमाने पे लेके जाएं। तो मैंने सेपरेट रूम कर दी, यानी कि फेशियल, मसाज, मेकअप, बिल्कुल सही, हेयर बिल्कुल सही, सर्विसेज सारी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में मैंने डिवाइड बिल्कुल कर सही, दिए, बिल्कुल सही। ताकि रिलैक्स होकर हर बंदा अपना काम करवा सके। माशाल्लाह गुड। अच्छा, अक्सर जो है हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्लिप्स, कुछ ऐसे कॉमेडी में भी मिल जाते हैं, कुछ बाकी भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं इजाज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इजाज भाई भी हमें ज्वाइन कर लें, हमारे साथ यहाँ पर आ सकें, और मैं उनसे पूछ सकूं कि इजाज भाई क्या ये वाकई कुछ हकीकत पे मबनी होता है, क्या कुछ ऐसा होता है? अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। माशाल्लाह गुड। अच्छा इजाज भाई, जिस तरह से आपने भी माशाल्लाह ओवरऑल देखा बिल्कुल, मैंने हमारी देखा। बीना बाजी का पूरा ओवरऑल स्पा पार्लर और इस तरह से, और उनके साथ माशाल्लाह हमारी बहन एमन भी खड़ी हुई हैं, और जिस तरह से इन्होंने हमें वेलकम किया, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अक्सर देखा जाता है, क्या ये कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, कि जो पार्लर वाली आंटियां होती हैं, जी ठीक है, कि वो जो है वो जहन्नम में जाएंगी कुछ इस तरह से, वो ज्यादा कि वो जो ब्राइडल के साथ जो वो कर देती है, और वो जी। दूल्हे जो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। नहीं ठीक है जफर भाई, इस पे मुझे एक शेर याद आया, खुदा जी। जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। जी। लेकिन व्यूअर्स को मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे सिर्फ हुस्न ही नहीं देना होता है, बट यहाँ पे जो आप सेंसिटिविटी लेके आते हैं ना अपने माइंड में, कि मैंने अपने यहाँ पे बालों का ख्याल करना है, स्किन का रखना है, या ट्रेंडिंग में जो चल रहा है आपका मेकअप, या जो आपकी कैटेगरी अभी चल रही है जेन, जिसको कह सकते हैं, वो हमसे बहुत फास्ट है। उसको सब पता होता है कि यहाँ पे हमें क्या सर्विसेज चाहिए, हमें क्या क्या बन के जाना है और क्या बन के निकलना है। मेरे ख्याल में ये चीज मैं अगर एमन से पूछूं, क्योंकि जेंजी की आपने बात की है, और जेंजी से मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, नहीं आप जेंजी नहीं है, हाँ। लेकिन डेफिनेटली जेंजी को आप अपने पास अपनी परवरिश में तो आप अल्हम्दुलिल्लाह लिया हुआ है ना। हाँ। तो क्या ऐसी जनरेशन जो आपके पास अभी वाली आती है, तो वो उनको कैसे डील के, क्यों देखें, अगर मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन से कोई आता है, हमारे से पीछे कोई जनरेशन से आता है, उनको डील करना आसान होता है, वो सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं। लेकिन जो आजकल की जनरेशन जेंजी जिनको कहा जाता है, अगर वो आपके पास है तो उनको कैसे हैंडल करती है? सर मैं ये बोलूंगी कि वो दे आर वेरी बेटर देन अस ना। हाँ ओह वाओ, मैंने सुना Very strange, very strange, really very वो strange। इनकार बहुत करते हैं, ये काम करते हैं, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं वो होगा। एक्चुअली नेचुरल है, मतलब अच्छा। न्यूट्रल है, नेचुरल जो भी कह दें, कि उनको हर चीज जो है ना वो बिल्कुल उनकी थॉट ये होती है कि जस्ट हाँ। वी आर राइट, हम Just हैं only we are आज right। हम हैं वो आज है के जैसे बादशाह, वो वैसे और ही हम है। जो कहेंगे वैसे ही हमारा हाँ। एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि एआई वाले हैं, ये जेंजी नहीं कह सकते इसको, एआई एआई वाले कह सकते हैं। मेरे ख्याल में बीना बाजी भी शायद इससे एग्री करें। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, अक्सर उनसे अगर कुछ कहा जाए, और चल अम्मा आपको क्या नहीं, पता, नहीं, आपको नहीं, कुछ पता ही नहीं है। मेरे बेटा तो अरे यही कहता अरे अब्बा चल तेरे को क्या पता। हाँ। अब यानी कि अम्मा अब्बा जो है वो अपनी उम्र गुजारते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। है। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं भी तुम लोग के साथ ही चल रही हूँ, हम मैं भी ये पुराने जमाने में नहीं हूँ, मैं भी नए साथ ही लेके चल रही हूँ। मैं वही करूंगा, अगर ऐसे चलेंगे ऐसे कस्टमर जो आ जाते हैं, उनको डील करना क्या मुश्किल होता है, या आप नहीं, करिए कि नहीं नहीं। बहुत ज्यादा आसान है? आसान है उनके, ये वैसे मतलब experience वाले की strange आप हो उनके जाता है। माइंड को रीड करें ना, कि अगर वो मैं क्या चाह रहे हैं। कहूँ ना कि इस तरह के कस्टमर आते हैं, तो वो जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो हम डिपेंडेंट है किसी ना किसी के। बिल्कुल। तो चलता आ रहा है डिपेंडेंसी का सिलसिला, हम यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठी हैं, पॉलर चल रहे हैं, सारे जो इकोनॉमी चल रही है वो किसी ना किसी की डिपेंडेंसी पे चल रही है। बिल्कुल। तो अगर वो इतने काबिल है जनरली, तो वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? वो खुद ही कर लें, खड़े हो जाए शीशे के आगे, जो करना कराना है। ये वो नहीं बात कर तो सही। सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, मैं आपको ये कहूँ कि जो हम छोटा सा सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था ना, जी, जी। ठीक है, उससे हम वापस बेचारे जेंजी पे चले गए। नहीं। ऐसा नहीं हो कि बाहर निकलते सारे ना, जेंजी ना, हमें ना, घेर ना, लें ना, वो- और बोले कि भाई हमारे खिलाफ क्यों पकड़ लिया, हमारे सब्जेक्ट को क्यों चेंज कर दिया, फिर हमारे सब्जेक्ट अपने उनका भी सब्जेक्ट पे जिक्र छेड़ना हमारे चाहिए पास ना। क्यों आ गए। उनका भी जिक्र छेड़ना चाहिए कि वो भी एक कोई ना कोई जनरेशन आ रही है, अच्छा उनका भी बीच में एक एड ऑन कर बड़ी डेंजरस जनरेशन आ रही है। बिना भाई जी आप क्या कहेंगे, आप बताएं कि जिस तरह से मैंने कहा, क्या वाकई ऐसा होता है, या वो सिर्फ एक सीन तक है कि सुबह दूल्हा बेहोश? ऐसा यानी कि जब मैं अपने बिफोर और आफ्टर करती हूँ, तो ऐसा काफी शौक लोगों को लगता है कि आप ओह वाह, मगर मैं जान कहती भाई हूँ- इसमें डिमांड वो सीन सही था, जो देखा था, जो सुना था, वो सही था। वो जो दुल्हन बेहोश हुआ था, उसकी दुल्हन यहाँ से तैयार हुई होगी। कोई का केस होगा, असल में होता कोई ये एक है आध, हाँ।
जब आप मेकअप कराने जाते हैं ना, पार्टी हाँ। मेकअप, हर तरह के मेकअप होते हैं, ब्राइडल मेकअप हो गया या फिर आपका एंगेजमेंट मेकअप हो गया, नाम रखे होंगे आप लोगों जी। ने, क्या करवाना, क्या पार्टी क्या मेकअप सर्विसेज हो टाइप गया। है। तो उसमें फिर ब्राइडल में ज्यादा वो माइंड सेट transformation हो करके जाती आते कि मैंने अंदर भेजा क्या है, अब मैंने नजर रखनी है उसका कोई बर्थ मार्क। अब वो हम्म। जैसे निकले मैंने वहीं से पहचान लेना है, ये चलती ऐसे या हंसती ऐसे या बात ऐसे करती, आवाज से। मैं यहाँ पर अगर एमएन की शायद नॉलेज में होगा बेटा, ये शायद आपके नॉलेज में हो कि टारगेट रोड का एक कॉलर है, मैं नाम नहीं ले सकता, वैसे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है मुझे, कि वहां पर एक जो है वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो बच्ची का जो फेस है ना पूरा बर्न हुआ था। अच्छा। ठीक है, उस बर्निंग फेस को उन्होंने पूरा पहले तो एक पूरी मोटी लेयर लगाई, आपके शायद नॉलेज में हो। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बेस बाद बना जो है देता उसको हूँ। फिर मेकअप किया, जी। मेकअप करने के बाद बिफोर और आफ्टर जो है ना वो पहचानने में कहीं से भी नहीं आ रहा था। और इसी तरह से कुछ केसेस, किसी को तो आर्ट कहते हैं, मेकअप है ही एक हाँ आर्ट का नाम। आर्ट तो है असली, मैं अब मैं पॉइंट के करीब करीब पहुंच गया, धोखा, आर्ट तो धोखा, है, धोखा। बट उसी आर्ट को अगर हम रियल लाइफ में लाते हैं, अब जब रियल लाइफ में लाते हैं तो आप मुझे ये बताएं बीना बाजी के पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, आज लड़के वालों ने देखने आना है, आज जो है लड़के वालों ने देखने के बाद आज एंगेजमेंट होनी है, वो जो बच्ची जो रिश्ते के लिए, शादी के लिए, किसी पर्पस के लिए आज इस पहली दफा देखने के लिए आई तो उसने आपके पास आने तैयार हो आते हैं गई, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तैयार हो गई, तैयार होके चली गई उसके बाद एंगेजमेंट का टाइम आ गया। ऐसे ही है अहमद, एंगेजमेंट के लिए आए, इन्होंने रिसीव किया, तैयार करके भेज दिया, फिर वो तैयार होके चली गई, और उसके बाद शादी वाले दिन तैयार हो गई, दूसरे दिन बारात वाले दिन तैयार, उसका असल चेहरा किसने देखा उसके ससुरालियों में से? असल चेहरा तो नहीं दिखा ना, बाद में दिख तस्वीरें गया। जो लगी थी वो पूरी फिल्टर मिली, आपके साथ right? फिल्टर चल रहा है, राइट, ठीक है, नहीं चल रहा है उसके ऐसा। बाद दूल्हे का बेहोश होना तो बनता है ना बेचारे का, ठीक है। मगर अब जो है ना मेरी कोशिश है कि नेचुरल में काम करती हूँ, मैं हाँ, बहुत तो ज्यादा ये नेचुरल तो तो नहीं जाती, नहीं कहते तो सब है नहीं। आप natural मेरी पे। पिक्चर वीडियो देखेंगे ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बनाया, थोड़े से फीचर इनहेंस करके उसको आप ब्यूटी के इनहेंस मैं कर आपको सकते यही हो। बोलूँ कि ये जनरेशन जो आ रही है अब हमारी जो है ना अच्छी आ बिल्कुल रही है, हम बहुत ज्यादा उनको उस पे बहुत नहीं ज्यादा जाते। अपने ऊपर नहीं ओवरलैपिंग हाँ, चाहिए। लेकिन overlapping लेकिन से थोड़ा इसमें सा। आपका कसूर नहीं पहले था ये ये रिक्वायरमेंट है। 8 साल पहले ना हाँ, मेरे बिल्कुल पास भी एक requirement ऐसा है। केस आया था जी, जी, जिसमें एक साइड वो नेचुरल होता है ना कि पैदाइशी उसका बिल्कुल जी, एक साइड केस- ढला हुआ था बिल्कुल जी, एकदम, जी, और जी। एक साइड मैंने उसका आईज भी बंद थी उसकी, तो मैंने उसका मेकअप, ओके। बहुत टफ टास्क था मेरे लिए, तो उस अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हो के गया। दौर में वो चलता था उस वक्त। ओके। अच्छा, पहले अब ना ऐसे चेंज हो गई है, बस केसेस आते चेंज हैं हो ऐसे गया। जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें थोड़ा सा जो है ना ये कवर करना है, ये स्पॉट है या कुछ भी बर्थ मार्क ऐसा कभी फेस पे आ जाता है या कोई बड़ा सा तिल होता है उस पर, फिर वो एडवाइस कर रहे होते हैं कि हाँ हमें ये थोड़ा सा ये वर्कआउट करवाना है फेस के ऊपर। बट ये है कि अगर नॉर्मल, मैंने भी देखा है ट्रेनिंग में जो चल रहे होते हैं मेकअप, उसी पे ही सारे पॉलर जो है वो उसी थीम को फॉलो कर रहे होते हैं और वही उसी तरह का ही पैटर्न पे आपको जो जैसा चाहिए एक्सपर्टीज में माशाल्लाह, क्या आप ये चैलेंज के साथ कह सकती हैं कि कोई भी ऐसा मेकअप आ जाए आप लोग के सैलून के अंदर बेटा, तो आप लोग जो है आपके पास इतना एक्सपर्ट स्टाफ मौजूद है कि आप लोग उसको बिल्कुल जो टारगेट दिया जाए उसको आप अचीव कर सकते हैं। आते हैं लोग पिक्चर्स निकालते हैं और बाल भी नहीं होते हैं कि हमें ऐसा हेयर स्टाइल कर दें, कुछ ना कुछ कोशिश करके ट्राई करके सेटिस्फाई कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाल नहीं होते तो बहुत ज्यादा लाते हैं, हमें ये वाला लुक दे दें डिमांड्स आप। होती हैं। अगर एक बंदा आ रहा कोशिश है, हमारी पूरी होती है, हम हर क्लाइंट को उसी की तरह सेटिस्फाई करते हैं। माशाल्लाह, एक good that- हैंडसम अमाउंट दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल एक्सपेक्टेशंस में लेके आ रहा बाकी है। जो इनका पोर्शंस हैं इसी स्पा के, उनका भी हमें एक विजिट विजिट कर करना लेते चाहिए हैं, चेक कर बिल्कुल। लेते हैं, माशाल्लाह देख मैं देख रहा हूँ काफी इन्होंने वेल डेकोरेट किया हुआ है। मैं पॉलर तो नहीं कह सकता लेकिन एक एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है। यहाँ पे आके आपको वो फीलिंग नहीं आएगी हाँ यार मैं कहीं जो है ना किसी पॉलर में। यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी है कि इनके जो जितने सेक्शंस हैं वहाँ पे इनका हेल्थ का भी काफी देखा जा रहा है, हाइजीन का भी काफी इन्होंने बहुत ख्याल रखा हाँ हुआ है, बिल्कुल बहुत ख्याल रखा है। no doubt। बाहर एंट्रेंस से लेके अंदर तक मैंने इनके सारे सेक्शंस विजिट किए, उनमें मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं रेकमेंड यही करूँगा व्यूअर्स को कि वो आएँ। बट ये है कि फिर डिस्काउंट भी आपको चाहिए होगा हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से, वो फिर आखिर में इंशाल्लाह एड्रेस के साथ प्रॉपर पूरा तरीके से गाइड करेंगे। डेफिनेटली, नो डाउट। अच्छा, अब इसमें बिना बाजी हम अब अगर हम बात करेंगे, अब हमें जो है कितने सेक्शन आपने बनाए हुए पार्लर के? अभी हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। हेयर्स जो है फर्स्ट यहाँ पर आप खड़े हैं, तो हमारे पास इतना ही एरिया था जिसको हमने कवर किया बहुत अच्छे सोच के कि हमें किस तरीके से क्लाइंट को प्राइवेसी भी देनी है और काम भी जरा अच्छा करना है। बिल्कुल ठीक है। एक हमारा मिड में सिटिंग एरिया है, हमारा कॉमन है, सही वेटिंग एरिया, तो हमारे 4 सेक्शन हो जाते हैं इस तरीके से। ओके ओके। अच्छा, अब जो स्टाफ है, स्टाफ को भी उसी तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं,
प्लस आपने ट्रेनिंग सेंटर भी इसको बनाया है। ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया और अच्छा ये है कि हम अपने स्टाफ को भी ग्रूम करते हैं। हर मंथ हम इनका जो है ना वो प्रैक्टिस में रहते हैं कि हम नई से नई जो चीजें मैं सीख कर आ रही हूँ या बाहर से हम कुछ ट्रेनर बुलवाते हैं तो वो इन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। गुड, अपग्रेड रहते हैं यानी कि हम लोग अपने वर्क पे ना। क्या ख्याल है कि अब बाकी सेक्शंस का विजिट बिल्कुल किया बिल्कुल जाए? आगे जी। गुड जी बेनवाजी जी आया मंजिल। ये आपका वेटिंग एरिया है। जी आई एम राइट दैट कि यहाँ आपके जो कस्टमर्स हैं वेटिंग के लिए वो बैठते हैं, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से आपके कस्टमर्स आते हैं, आज तो स्पेशली ऑफ देना पड़ा, उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में वेटिंग एरिया छोटा पड़ता होगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह के बस मैनेज करना पड़ता है, कर लेते हैं। और अगर सीजन आ जाए, जिस तरह से ईद का सीजन आ गया, जी। कोई इवेंट्स आ गए या इस तरह का आ गया, और उसमें तो फिर मेरे ख्याल में आप लोगों को या मेहंदी वगैरह हम के लिए अपॉइंटमेंट पे यानी कि बेस पे फिर स्टार्ट ले लेते हैं अपॉइंटमेंट। अच्छा फिर टाइमिंग्स देते फिर हम जाते हैं। स्टॉप कर देते हैं रात तक, जब हम नहीं इतना क्राउड कंट्रोल कर पाते तो फिर हम स्टॉप कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही है, करते हैं फिर हम माशाल्लाह लोग इस माशाल्लाह, तरीके से। दैट्स गुड। अच्छा वेटिंग एरिया के बाद फिर हम आगे चलें, दूसरा आपका जी। कौन सा रूम है? ये मेरा मेकअप रूम है। अच्छा ये मेकअप रूम है। आए हाउस जी, ये आ गया मेकअप रूम। जी तो मेकअप रूम में ब्राइडल जो है वो यहाँ पर तैयार होती है, जी या फिर पार्टी मेकअप्स वगैरह जो है वो बिल्कुल। यहाँ पर होते हैं। माशाल्लाह गुड, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है आपने। और आप, मैं तो ये चाहता था कि शायद कोई कस्टमर भी आपका मौजूद होता या कोई आ जाए, अभी ताकि हमने हम क्लाइंट्स अपने खुद आज रोक दिए इंटरव्यू की वजह से। मैं ओके ओके पॉज किया हुआ। जी गुड दैट माशाल्लाह। हम्म। अच्छा क्या क्या ये वही सारी चीजें हैं या इसको भी आपने चेंज किया है, फर्नीचर को, बाकी चीजों को, मिरर्स को, इंटीरियर को? फिर वो मेकअप डिस्पोज रूम मेरा वही है। अच्छा मेकअप रूम वही है, बाकी काफी कुछ चेंज किया। बिल्कुल सही है माशाल्लाह। इसमें अगर हम मेकअप के जो आपके आइटम्स हैं, क्वालिटीज हैं, बाकी चीजें, इनके नाम तो मुझे नहीं आते, तो ये इनका क्या, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें कि किस क्वालिटी के, एक होता है ए प्लस ग्रेड, फिर उसके बाद ए ग्रेड, फिर उसके बाद बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, फिर डी ग्रेड। A+A कैटेगरी में ही रखेंगे हम इस अच्छा चीज को। ए प्लस ए कैटेगरी, बिल्कुल। उससे नीचे की कोई चीज नहीं है? नहीं, अच्छा अगर ब्रांड को आप मेंशन करना चाहिए कि कौन कौन से ब्रांड के ऊपर आप लोग जो है कस्टमर को सर्विसेज दे रहे होते हैं? अगर फेशियल के हिसाब से पूछा जाए तो हम जेनसेंस वगैरह को प्रेफर करते हैं। ठीक है। जीनू है, जेनसेंस है और अदर अच्छे ब्रांड्स है। अगर कोई कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता आपका, जी। और वो कहते हैं कि जी आप ठीक है, आपकी फीस में अफोर्ड कर लूंगा एज एग्जांपल, बट आपके जो मेकअप के आइटम्स हैं ये महंगे हैं, या फेशियल के आइटम्स हैं वो महंगे हैं, उस हवाले से फिर आप जो है क्या उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या आप फिर अपनी पॉकेट से करके देते हैं? नहीं, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज तो प्रोडक्ट्स पे नहीं करती। मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी रेंज इससे नीचे नहीं जा रही, तो मैं प्रोडक्ट्स पे नहीं करती। थोड़ा बहुत मैं कंसेशन कर लेती हूँ, कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पाता इस चीज को लेके। जो कि नोट करने का है कि प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने आप को नुकसान दे के, अपनी फीस में लेस करके या अपने चार्जेस में लेस करके या अपने प्रॉफिट में लेस करके, उसमें लेस करके आपने उसको कवर किया। दैट्स हाईली अप्रिशिएटेड माशाल्लाह, दैट्स गुड गुड दैट। अच्छा मेकअप रूम माशाल्लाह, और इसी तरह से आपका वेटिंग एरिया हो गया। इसके बाद आगे कौन सा आपका आएगा? आगे हमारा मसाज सर्विस। When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't. बी के फादर, बी के बीना खालिद, और बी के खालिद मेरे ख्याल में जिस तरह से बीना बाजी ने अपने साथ हस्बैंड का नाम लगाया है, और उस हस्बैंड के को उन्होंने बाकायदा हाईलाइट करके साइन बोर्ड पे लाई है और अपनी बिजनेस के अंदर लाई हैं, तो आई एम श्योर दैट कि जिस तरह से उनकी सपोर्ट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, उनकी कितनी मॉरल सपोर्ट आपके साथ है खालिद भाई की? उनकी 101+ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का सफर माशाल्लाह। उनके बगैर नहीं कर सकती थी मैं। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, जो मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मेरे शौक को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। बहुत ज़बरदस्त। वरना कितने हस्बैंड होते हैं कि नहीं करो, ये नहीं निकलो, मुझे फाइनेंशियली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर ये मेरा शौक था जो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया मुझे। अच्छा जफर भाई, कभी इनकी अनलिमिटेड सर्विसेज भी है, स्पा भी है, ब्यूटी सैलून भी है, और उसके अंदर मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जैसे ब्यूटी पार्लर का ही नहीं है इनका डोमेन, ये बाकायदा हेल्थ केयर जो बालों के और स्किन के मसाइल होते हैं,
आप अगर किसी कॉलर जाएं तो वो सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि जी हाँ क्या करना है, और कर देते हैं उसका, या मेकअप ओवर कर देते हैं, या फिर आपका बेस कवर कर देते हैं। जो अगर कोई मसले मसाइल भी है ना स्किन के और हेयर के, हम तो कॉलर जाते हैं 2 चीजें लेके, स्किन और हेयर। मगर तो वहाँ पे treatment भी बताते हैं रफ माशाल्लाह। टफ वर्ड में कहूँ कि एक जो है नॉन प्रोफेशनल डेंटर है, बिल्कुल। उसके पास आप गाड़ी ले गए डेंट के लिए, उसने उसमें लापियां भर भर के जो है ना भर के। ऊपर कलर मार दिया, ऐसे थोड़ा ही। थोड़ा सा हल्का सा गाड़ी हिली, बिल्कुल। वो पूरे के पूरे टुकड़े बाहर आ गए, वजह वापस उसकी डेंट भी नजर आ गए। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर किसी दूसरे पार्लर में जाएं तो उन्हें जो फेस के जो खड्डे मड्डे होते हैं उसके अंदर जो है उन्होंने वैसे ही पूरी लॉपी भर दी, बिल्कुल। जिस तरह कलर वाले रंग वाले लेकिन जो करते हैं, defect है, उसके जो बाद उसके ऊपर अंदर कुच्ची मसला है, मार दी। वो हाँ। क्या करते हैं, क्या मुझे नाम नहीं कुची आता कहते हैं। कुच्ची कहते हैं कुची कहते हैं, बाकी क्या हमारे कहते हैं? हम मर्दों की जबान में कुची कहते हैं, बाकी कॉलर की जबान में नहीं, आप जो है बताओ वो मेकअप का क्या होता है? डेंटिंग पेंडिंग कहते हैं कुछ Denting तो पेंडिंग बस। डेंटिंग वार्निंग करा के लें। लेकिन हाँ। मैंने एक चीज अच्छी नोट की व्यूअर्स, वो ये है कि इनके कॉलर में आपको ना सिर्फ ट्रीटमेंट मिलेगा, बल्कि उसकी आपको लाइफ टाइम के लिए उसके मशवरे भी अच्छे देंगी, जो कि दूसरे कॉलर नहीं दे सकते। आपको और मशवरे हेयरस्टाइल के फ्री मसले- में, हाँ बिल्कुल। मशवरे फ्री में। और उसके साथ अभी भी थोड़ी देर पहले जो है हमारे साथ जो हमारी बहन एमन बैठी हुई थी, बिल्कुल। उन्होंने कहा था चाय भी फ्री में है, हाँ चाय भी फ्री, कोल्ड ड्रिंक भी फ्री में है। ऐसा ही है। बिल्कुल। ठीक है। शायद वो उसके पैसे काट खाने- लेते हैं। पहले खाने गेस्ट हमने हमारे पास आते हैं, ठीक है। हम लोग उनको सर्व करते हैं, लेकिन हमें अच्छा खाने लगता का है। नहीं बताया, खाने का नहीं ना। खाना गोल, खाना भी चलता है, लंच भी खाना गोल। प्रोवाइड, जब यानी कि अगर 6 घंटे की 8 घंटे की सर्विस हम इस हेयर पे दे रहे हैं किसी को, तो फिर हम अपना लंच के साथ उनको भी लंच करवा अच्छा, रहे उनको फिर हैं। लंच हाँ, प्रोवाइड कोई कर ऐसा मसला नहीं चलें, है। ये तो दो तफरीह तीन की बात- घंटे और तफरीह की लगा बात ले है। यार, 2-3 घंटे और लगा ले, 2-3 लेकिन उसके लिए घंटे आपको लंच भी कॉलर में मिलेगा। बुकिंग कुछ करानी ऐसे पड़ेगी। इवेंट्स होते हैं ना, जैसे चांद रात है, तो लड़कियां 4 से 6 घंटे आई हुई है यहाँ पे भूखी, जी बिल्कुल, तो हम उनको कुछ ना कुछ देते हैं सर्विंग करने बिल्कुल में। सही बात। अच्छा, इसमें एक चीज और बताएं कि इसमें वॉक-इन नहीं, आपसे पहले एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है कि हाँ टाइमिंग के इश्यूज हैं आप लोगों के, या कुछ ऐसे डेज हैं या इवेंट्स सीजन में हैं, हम या लोग स्पेशली बुकिंग्स पे ही काम करते हैं। मैं सही है। विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं लेती हेयर और मेकअप का। ठीक है। अदर सर्विसेज आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं सही है। स्किन की, मगर मैं मेकअप और हेयर पे अपॉइंटमेंट ही लेती अच्छा, आप लोगों का ब्यूटी पार्लर तो हर कोई खोल के बैठा है, लेकिन ये ब्यूटी क्लिनिक भी है। उसमें ये है कि आप सिर्फ आते हैं, अपना जो कवरेज करानी है उसके अलावा भी आपका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ना कि ये कि हाँ सिर्फ जी आप आए आपको मेकअप किया, ब्राइडल मेकअप किया, हाँ आपके और हेल्थ इश्यूज हैं स्किन और हेयर रिलेटेड, वो भी कर रहे होते हैं जी। माशाल्लाह। हम स्किन एनालाइज करके ही हम उनको मशवरा करते हैं कि आपकी इनको स्किन एनालाइज कैसे करती है, ये तो स्किन को बताया अब बीना जी। इतना एक एक्सपीरियंस हो गया, एक तो एक मशीनरी से भी होता है सारा, जो हमारी हाइड्रा मशीन है उस पर भी हम एनालाइज कर सकते हैं, और हमारे एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर व्यूअर्स के लिहाज से आप ये बताएं कि मशीन जो जो एनालाइजिंग मशीन है आपकी, जो स्किन को एनालाइज करती है, वो कैसे एनालाइज करती है, उसमें क्या क्या फीचर है, क्या इस एरिया के अंदर जहां पर ये आप इतना बड़ा माशाल्लाह पार्लर स्पा बना के बैठी हैं, जी क्या ये मशीनें अदर पार्लर्स पे हैं या सिर्फ जस्ट यू हैव दैट? एरिया वाइज तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आई थिंक नहीं है, बट मैंने इतनी स्पेशल ये बात है, एनालाइज स्किन एक्सपर्ट रखी हुई है मैंने कि वो बहुत अच्छे से उसको गाइड करती है। अच्छा, मैंने देखा है, विजिट किया मैंने, ओवरऑल एक वाकर ऑन किया, उसके अंदर इनके पास माशाल्लाह लेटेस्ट मशीनरी है। जो अभी एक होता है ना कि हाँ हम किसी कॉलर चले जाए, बोले यार इससे अच्छे तो हमारे घर में पड़ी हुई चीजें जो कि हम कर लेते फेशियल वगैरह, लेकिन माशाल्लाह एडवांस चीजें इनके पास और एडवांस मशीनरी और ट्रीटमेंट टाइप को फिर मशीनरी देख के पता चल जाता है कि हाँ, जैसे होता है ना कि डॉक्टर के पास मरीज चले जाए, आधा मर्ज उसका डॉक्टर को देख के ही बिल्कुल सही बात खत्म हो है, जाए, इसी बिल्कुल तरह सही बात। कॉलर में आने के बाद भी आधा इंसान वैसे ही अंदर से खुश हो जाता है, खुश हो उसका जाता है, खून भर आधा जाता है, वैसे खूबसूरत हो जाता है बगैर खूबसूरत- मेकअप कराए। बिल्कुल उसकी यानी कि वैसे अब हम यहाँ पर आए हैं, ही- अभी हम बाहर निकलेंगे तो हमें लगेगा ओ वाह हम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए, बिल्कुल। हम खाली चक्कर लगा के जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी और ऐसे ही है एनवायरनमेंट ना? मैंने ओवरऑल देखा है माशाल्लाह, काफी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, और उसमें जो इस लेकिन तरह यहाँ के- पर जो मुझे हाँ, नजर आ रहा है ना इस वक्त, एमन भी और बीना भी दोनों बहुत सीरियस बैठी हुई हैं, जैसे हम कोई मुल्क के हालात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रही, बहुत सोचे जा रही हैं, पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं क्योंकि बोलना हमने लंच नहीं क्या। किया। तो हमने कौन सा किया हुआ है, लेकिन हम 2 घंटे और नहीं गुजार सकते लंच के चक्कर में। तो शायद लंच मिल जाए, या यहाँ पर वैसे हमने सुना कच्चे गोश्त की बिरयानी अच्छी मिलती अच्छा है, गोश्त अच्छा है, लेकिन क्योंकि काफी ये दूर है, हैदराबादी बता हैदराबादी कॉलोनी है, हाँ। और पीछे हैदराबादी कॉलोनी जी। लगती है, और हैदराबाद की पूरी गली है जहाँ पर अचार वाले बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं, तो वाह क्या बात है, शायद जबरदस्त। आप लोगों और ने जो भी टेस्ट नहीं शौकीन किया है होगा। खाने नहीं, के, हमने टेस्ट नहीं वो किया। यहाँ पर आते Homemade होंगे। अच्छा, वो हमारे ज्यादा वो तवज्जुह रहता से भी टेस्ट नहीं हो रहा आज क्या चीज? ये बिरयानी। हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन एक एपिसोड में नहीं, फिर कोई नेक्स्ट एपिसोड होगा इंशाल्लाह फिर। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फिर जरूर हम आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी भी दिखाएंगे, उसका टेस्ट भी बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं, उनका सारा वर्क यहाँ पर मैं बीना जी से ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो सफर था बचपन से लेके अब तक कैसा रहा। अगर हम बचपन की बात करें
एक तो होता है कि गुड स्पून बंदा मुंह में लेके पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड स्पून लेके पैदा हो, पर बहुत अच्छा था। बहुत अब अच्छा था। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे, मेरे भाई बहन सब कुछ बहुत तो अच्छे, बहुत स्ट्रगलिंग आपको सपोर्ट, पहले से बहुत। करनी पड़ी हो उस शादी से पहले की लाइफ में? मुझे कुछ ऐसा नहीं, बहुत चिल Good है। माहौल था हमारे घर का, कुछ माशाल्लाह। भी Supportive है कोई सब। ऐसा नहीं था कि हमें किसी चीज में प्रॉब्लम हुई हो कभी अच्छा, भी। अगर जफर भाई मैंने देखा है कि कोई लेडीज काम शुरू कर रही होती है ना, कोई आपको बिजनेस बिल्डअप कर रही होती है, तो पीछे से घर की सपोर्ट ना हो ना तो कामयाब नहीं हो सकती। माशाल्लाह आज 100%, आप लोग कामयाब 100%। इसीलिए कि आप लोगों को घर की सपोर्ट है, मेरे आपके भाइयों हस्बैंड की की 100%। बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट है, सबसे पहले मेरे बिल्कुल 100%। हस्बैंड और मेरे भाइयों की, नो डाउट, सबके नो डाउट। सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची उसके उस देखिए, अगर हस्बैंड की सपोर्ट ना हो, उनकी सपोर्ट के बगैर आप घर से बाहर कदम नहीं निकाल बिल्कुल। सकते, उनकी इजाजत के बगैर, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हो, और हकूक के लिहाज से भी उनकी इजाजत है, तो माशाल्लाह आप इस लेवल पे मौजूद हैं। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी जर्नी के ऊपर हाईलाइट कर दें, थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स को कि ये जर्नी कैसी रही आपकी। ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। मेरा तकरीबन 12 सालों का एक्सपीरियंस है। इस वक्त मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, थोड़ा टफ टाइम रहा, पर मैं ये कहूंगी कि वुमेन को ना बहुत आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ लिख के आपको अपने आप को जाया नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ करके Skills होनी चाहिए। मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया ताकि मुझे मेरे बच्चों को सपोर्ट भी मिले अच्छा, और मैं उनको इनके करियर को अच्छा बना सकूं। इसलिए माशाल्लाह गुड। लेकिन आपने बिल्कुल समराइज कर दी अपनी पूरी जर्नी 2 मिनट के अंदर। हेमन जी, चले अगर हम आपसे पूछें बीना जी की समरी, तो आप कैसे कहेंगे? समरी आपने नहीं बतानी, थोड़ा सा जर्नी के हवाले से थोड़ा सा समराइज ओपन कर दें। अच्छा, इनकी ये ब्रांच आई थिंक चौथी ब्रांच होगी, फोर्थ ब्रांच होगी। इन्होंने ऐसा नहीं है, देखें कि बिजनेस जो है ना आपने बड़ा कर दिया अचानक जी। से। हम हर बिजनेस जो है ना वो स्मॉल बिजनेस से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि मास्टर आप शुरू से इनके साथ हैं, इसलिए Exactly। मैंने आपको बिठाया भी है, जी। इसलिए आपसे पूछते रहा हूँ। कोई भी बिजनेस ना बहुत बड़े से स्टार्ट नहीं होता, तो जी। हमने भी बहुत छोटे से ही स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही। वहीं से क्लाइंट हुए। कभी ऐसा होता था कि हमने पूरे दिन कुछ खाना ही नहीं खाया, इतना टाइम का प्रेशर होता था। तो उन्होंने ये जर्नी भी की है, सुबह ये क्लास लेने जा रही हैं, दिन में आके उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया। इनकी जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं, उनको लंच प्रिपेयर करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बच्चे भी साथ होते थे, मैनेज समटाइम्स बहुत करना छोटे होते थे, और उनको बिल्कुल फिर मैनेज करना साथ बहुत लेके मुश्किल काम था। किया। उस वक्त ऐसा था कि हमारे पीछे फिर हस्बैंड की भी कोई केयर हाउस करनी होल्ड है, नहीं घर थे। का भी खाना है, बिल्कुल। हस्बैंड का भी सेहत का, हर चीज का, खाने पीने का, हर नीड का ख्याल रखना है। दैट्स नॉट ए जोक। एक औरत के लिए तो एक चैलेंज है, बच्चों उसके को लिए तो डबल माँ जो स्ट्रगल होती है। है ना वो टायर्ड नहीं चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इन्होंने 100% दिया है। वो यहाँ तक थकी हुई भी होंगी ना, तो जाके उनके लिए हर चीज करेंगी। अच्छा, एक फॉलो अच्छी बात ये है कि ये होम बेस्ड देती हैं, अभी भी बाहर का नहीं देंगी बच्चों को। माशाल्लाह ये माशाल्लाह घर आके बनाती हैं, इनको कुकिंग का भी बहुत शौक है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों की ब्रांचेस कितनी हैं अभी? ये हमारी फोर्थ ब्रांच है, पर हाँ। प्रीवियसली मैंने सारी अभी जो है ना अपने Close स्टाफ के हैंडओवर कर दी है सही है, अपने, आपके विजिट्स रहते हैं। क्योंकि मेरा अभी बहुत दूर पड़ता है अब जाना। तो मैं माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इनके मेरे branches। बन चुके हैं क्लाइंट्स, तो मैं ज्यादातर तो प्रेफर आगे यहीं पर ही मजीद इसको करती हूँ। एक्सपेंड करेंगी, अब इंशाल्लाह अल्लाह अच्छी जगह पे, मेरी कोशिश है कि मैं एरिया से बाहर निकलूं। डीएचए की तरफ निकलेंगी? डीएचए से तो नहीं, क्योंकि हमारे जो डीएचए व्यूअर्स तो हैं नहीं, वो हर पर जगह ही थोड़ा मिलेंगे सा। आपको, बिल्कुल, किल्सन में भी मिलेंगे, मेरे आपको यहाँ पर हदीद में भी गुलशन से भी मिलेंगे। आते हैं, जौहर से भी आते हैं, मेमार है। से भी आते हैं, और समझने के सदर के एरिया से भी आते हैं। तो आप लोगों ने टारगेट किया हुआ कि नेक्स्ट ब्रांच वहाँ खोलनी है। मेरी हमें है तो इनको भी अच्छी पता जगह चले मिल ना जाए। लोगों को कि हाँ। हाँ हमारी अभी जो है अपकमिंग जो है वहाँ ब्रांच है, तो हमें दोराजी या फिर हाँ, बिल्कुल। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ मेरा सही। है, इंशाल्लाह। घर से थोड़ा नियरेस्ट, क्योंकि मुझे इसमें बच्चों को जज्बे टाइम असल में देना पता होता है। है क्या, डीएचई या क्लिफ्टन की अगर बात करते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ एक नाम रह गया है। अगर वहां पर सर्विसेज की फीसेस की बात करें, तो फीसेस तो उन्हें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए। बट बिल्कुल। अगर सर्विसेज की बात करें, तो वो सर्विसेज जिस तरह यहाँ पर मिल सकती हैं, वो सर्विसेज वहां नहीं मिल सकती, वो चीज वहां नहीं। हाँ ठीक है, हाइजीन का ख्याल माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने रखा हुआ है, इस तरह वहां पर भी है, बट सर्विसेज का एक इफेक्ट या एक लेवल जो है ना, वो नहीं हमें अब मिलता। वो सिर्फ एक बिल्कुल। नाम को कैश कर रहे हैं, या एरिया के नाम को कैश कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से बिल्कुल नियरेस्ट हमारे तारिक रोड है, तारिक रोड से एक स्पा मौजूद है, मौजूद है। लेकिन वहां पर भी अगर हम तारिक रोड की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी वो लेवल जो है अब नहीं है। हाइजीन का वहां पर ख्याल नहीं रखा जाता। सरप्राइज विजिट मैंने अपनी वाइफ के सरप्राइज विजिट कराए 3-4 स्पा के, सही। उन्हें जस्ट ऐसे ही विजिट किया फीडबैक के लिए, और जब मेरे पास फीडबैक आया तो डेफिनेटली आई वाज शॉक। क्यों? क्योंकि गंदगी, अब वो चल चुका है, सारी उन्होंने चीजें एरिया बोला का भी तो बहुत customer हमने सुना है कि used to स्टाफ staff भी बहुत बहुत रूड स्टाफ है। मिसबिहेव करता है। आपका बिल्कुल। कितना बिल्कुल, टाइम no हो doubt। गया इस वाले ब्रांच को ओपन हुए हुए? ये तो रिसेंटली अभी आई हाँ, थिंक ये ओपन हुई रिसेंटली है, है, बट मुझे रिसेंटली 1 ओपन ईयर हुई है। प्लस हो गया इस एरिया में। हाँ। ये मतलब add-on हो गया। हमें इनके बकिया 3 ब्रांचों को भी विजिट करना चाहिए, ताकि वहाँ भी हम इंशाल्लाह, कस्टमर को इंशाल्लाह, एनवायरनमेंट बता इंशाल्लाह। सकें वहाँ पे कि हाँ हमारा मेंटेन्ड है।
बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मुझे इंशाल्लाह। जो मैंने जितना इनके फॉलोअर है पूरा, जिस जो जो इनकी सर्विसेज हैं वो मैंने देखी है माशाल्लाह। एक प्रोफेशनल ही ये सारी चीज़ें मेंटेन रख सकता है, ना कि कोई अभी उठा और उसने काम शुरू नहीं कर नहीं दिया नहीं और नहीं, फिर उसका अल्हम्दुलिल्लाह ना ये हो चीजें तो माशाल्लाह। ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है। और सरप्राइज विजिट जो है वो हमारे डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं बिल्कुल फीमेल की तरफ से, फिर वहां पर जाके जहां पर अप्रिसिएशन करनी होती है, अप्रिशिएट करना होता है, वहां पर हम अपने कैमरे लेके भी पहुंच जाते हैं कि यार अब बिल्कुल यहाँ अप्रिसिएशन का टाइम है। कहीं अगर पॉइंट आउट करने का टाइम है तो हम उनको कॉल करके मैसेज करके देते हैं, खुदा का खौफ करें, इंसानियत के नाते आप अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें, ये आपके हाथ में बता रहे। एक ह्यूमैनिटी भी सबसे मेन चीज है, बिल्कुल इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद फिर मजहब और बाकी चीजें ऐसे आ जाती हैं। इसमें जो है मैं अगर थोड़ा सा लास्ट के अंदर, क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, इसमें अगर मैं जानना चाहूँ एमएन जी, आप बताएं लास्ट में कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें इस पाक के हवाले से, आपकी तरफ से। कैमरा है और आप हैं, क्या बोलूं। जो आपका दिल करे। नहीं, आप जो है वो यहाँ सैलून विजिट करें, अवेल करें ऑफर्स, और मंथली इनके पैकेजेस आते हैं, इनके डील्स जो है वो निकलती रहती हैं, तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट खुद आके बात करें, ऑनर का नंबर भी है यहाँ पे, और जो भी हो आपको, आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अच्छा, मच। आपकी तरफ से कोई मैसेज तो लाजमी जाना चाहिए। आप बीना जी, आप खुद बैठी हैं, बीना खालिद, आप खालिद साहब को कोई मैसेज देना चाहें, या आप अपने भाइयों को कोई मैसेज देना चाहें, या अपने कस्टमर्स को कोई मैसेज देना चाहें, व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, जो आपका दिल करे। कैमरा है और आप हैं, आप डायरेक्ट हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी स्पेस दे दी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे, मेरे घर वालों का सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि अभी जो है वो डील्स चल रही है, 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है काफ़ी चीज़ों पर, तो आप लोग आएँ और अवेल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबका, थैंक्स फॉर आपके कमिंग। स्टाफ का मोस्ट वेलकम, कि आप लोगों ने जो है माशाल्लाह जिस तरह से अपने एनवायरनमेंट को, वर्ल्ड स्टाफ को, और जिस तरह से आपने पूरा एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट रखा हुआ है, स्टाफ को साथ साथ ट्रेनिंग दे रही हैं और प्रीफर करती हैं आप जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ अप्रिशिएट करना होता है वह बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि ये हक की आवाज़ है, हमारी कोशिश है जहाँ तक जाए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि शायद ये आवाज़ किसी कानों में जाए तो वो भी उसको फॉलो कर सकें, इसी तरह के स्टेप ले सकें, किसी और गरीब फैमिली की मदद हो सके। बिल्कुल, इस हम लिहाज लोग से, जो है ना क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट या फिर हम उनको फ्री सर्विसेज कर देते हैं जो बहुत नीडी हों तो उनके लिए। न्यू ईयर्स ये मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, ये इस चीज़ का मैं ऐनी शाहिद हूँ कि अगर कोई गरीब बच्ची है शादी के लिहाज से, उसका मेकअप है वो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप मेरे रेफरेंस से आए यहाँ पर, और आप बिलीव नहीं करेंगी, शायद अपनी इनको पॉकेट से भी लगाना पड़े, पॉकेट से लगा के उस फैमिली के लिए वो करेंगी कि जो आपकी सोच है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि वो एक स्पोर्ट, एक नेकी का काम, उस लिहाज से कि वो बच्ची का दिल भी खुश हो जाए, और एक गरीब के दिल से जब दुआ निकलती है तो वो अर्श तक जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सी टू ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।